शुरू कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। By the end of the presentation, audience will be able to describe elaborate laser using glaucoma, describe gap posterior capsulotomy, classify laser hazards and describe measures to overcome these hazards. And we have discussed laser using retina and some laser using glaucoma in the previous presentation. Now we will discuss argon laser trabeculoplasty. Indications for this laser is open angle glaucoma with pigmented trabeculum, which can either be in primary open angle glaucoma or pseudoexfoliation syndrome glaucoma or pigment dispersion syndrome glaucoma. Medical and the surgical option are desirable or ineffective for patient, then we can go for argon laser trabeculoplasty. Method: first we will take consent, then institute topical anesthetic, then we set laser according to the laser we will select. For example, if we select argon laser, then we use a spot size of 15 microns and the duration is 0.1 second and the power we use will be 30 to 1000 milliwatts power. We will start with the low power, then increase accordingly as we required for the procedure. For diode laser, commonly microspot use is 100 microns and the duration is 0.1 to 0.2 seconds and the power is 800 to 1200 millivolts. Then we position gonio lens and identify trabeculoplasty site. We should aim for the anterior border of the pigment trabecular meshwork. We should do at the junction of the pigmented and the non-pigmented because if we apply it in both, as can be explained in this picture. This shows the exact position for the placement of laser in case of trabeculoplasty. If we apply it here, then which is the pigmented, non-pigmented trabecular meshwork, it will become too anterior for the laser side. If we apply it in the posterior part of the trabecular meshwork, it will be too posterior. So we should apply at the junction of the non-pigmented and the pigmented trabecular meshwork. Then focus and fire laser. The ideal reaction is mild blanching or a small bubble. The more pigmented the angle, the less power will be required. Place 50 equally spaced shots or 180 degree. And this table shows all the lens parameters used for trabeculoplasty. Spot size we discussed is 15 microns in case of argon green laser. Spot duration is 0.1 second and power is 200 to 800 millivolts. Number of spots per quadrant is 20 to 25 spots and wavelength uses argon laser. Contact lens uses Goldman contact lens. Anesthetics, topical and pre-treatment with apraclonidine or brimonidine. The second picture shows the treatment. For example, if the bubble is too small, then it means insufficient treatment is given. If the bubble size is too large, it means excessive treatment with the site is given. So the bubble size or the blanching reaction should be adequate size. Complications of these procedures are bleeding, peripheral and ear signings, IOP spikes, and may increase failure rate of subsequent trabeculotomy. The other type of argon laser trabeculoplasty is selective laser trabeculoplasty. Indications are the same as for argon laser, but more targeted and utilize less energy as compared to argon laser trabeculoplasty. Method strategy is to place 50 non-overlapping spots, 400 micron spot size, which is larger as compared to the previous one in which we applied 15 micron size. And the duration is 3 nanosecond duration and the energy we use is 0.6 millijoules. Centered on the trabecular meshwork over the inferior 180 degree. The power is adjusted to be 0.1 millijoule below the level that causes bubble formation. इतनी पावर होनी चाहिए कि हमारा बबल बने जब हम लेजर अप्लाई करते हैं. Complications similar to the ALD bleeding, peripheral ear signings or IOP spikes, and a transient subclinical reversible corneal endotheliopathy can occur in early stages after selective laser trabeculoplasty. This picture shows the laser spot for argon laser trabeculoplasty and this is for the selective laser trabeculoplasty. You can see the difference in the spot size of both. This is another picture showing argon laser trabeculoplasty, spot size and the selective laser trabeculoplasty spot size. There are some laser filtration procedures which is external sclerostomy and internal sclerostomy which can be either contact or non-contact. It is cyclodestructive procedures also known as cytophotocoagulation. We discussed
this can be transscleral cyclophotocoagulation, transpupillary cyclophotocoagulation, and diode laser endophotocoagulation. The first one is transscleral diode laser photocoagulation. Indication for these procedures are if patient's IOP is not treatable or maintained after anti-glaucoma drugs or other laser procedure, then we go for this procedure in which we actually target ciliary bodies, which are the main processes responsible for the production of aqueous humor. It can be used for intractable increased IOP refractory to the other treatments, for example in rebiotic or synechial angle closure, or where the patient is too systemically unwell to tolerate surgery. Less commonly as a temporizing measure prior to trabeculotomy while the ocular surgery is being optimized. Primary treatment for glaucoma in challenging conditions. Method consent, then we set laser, and normally power used for diode laser is 1500 millivolts and duration is 1500 milliseconds or 15 seconds, 1.5 second duration. Then we will identify the ciliary body, which is usually present 0.5 to 2 millimeter behind the limbus. कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसके दो टेक्निक्स हैं, वो फर्दर हम डिस्कस करते हैं. Transillumination helps to identify the dark ciliary bodies, and this picture can show us. There are two techniques: transillumination technique 1 and the transillumination technique 2. And first technique, we transilluminate the area with a probe, and the interior margin of the ciliary body will be seen as a dark part. जब हम अपने लिम्बस से 0.2 to 0.5 to 2 mm के डिस्टेंस पे ट्रांसल्यूमिनेशन करेंगे, लाइट फॉल करवाएंगे तो हमें डार्क एरिया नजर आएगा, उसको हम लोग सिलियरी बॉडी के इंटीरियर मार्जिन होगा. फर्स्ट टेक्निक तो ये है कि हमने आइडेंटिफाई किया, वहाँ पे लेजर लगा दिया. दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम ट्रांसल्यूमिनेशन टेक्निक 2 में कि हमने आइडेंटिफाई किए एरियाज, उनको हमने मार्क कर दिया पेन के साथ, उस पूरे एरिया को मार्क किया, सर्कमफ्रेंशन हमारे पास सर्कल आ जाएगा जो कि इंटीरियर मार्जिन ऑफ सिलियरी बॉडी को डिनोट करेगा. देन वी विल अप्लाई द एप्लीकेशन होती है बेड टिप design sports precise placement around circumference of anterior margin of ciliary body. Then place the contact probe in anterior posterior manner against the globe, adjusting its position so that the probe is directed at the ciliary body. Fire laser 5 to 10 shots per quadrant. If laser is audible, पॉप की अगर हमें साउंड आती है, हमने अप्लाई किया तो हमने पावर कम कर दें, अगर नहीं आती तो फिर हमें अकॉर्डिंगली पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी और एक ऑडिबल साउंड आएगी. Avoid 3 and 9 o'clock position for this procedure. Can anybody explain why we have to avoid 3 and 9 o'clock position in case of dilatation? सिलियरी जो न्यूरोवैस्कुलर बंडल है वो हमारा 3 और 9 o'clock पोजीशन से जाता है, अगर वो डैमेज हो गया तो फिर पेशेंट की सेंसेशंस भी जा सकते हैं उसके. And superior quadrant only spared in case of possible trabeculotomy in the future. This shows the placement कि हमने प्लेस किस तरह करना है. साइड ऑफ द MP3 पोजीशन perpendicular to the surface of the globe and then अप्लाई करना है हमने इस तरह कि हमने 9:30 से 2:30 तक ले जाना है, then 3:30 से 8:30 तक ले जाना है, और जो 3 o'clock और 9 o'clock की पोजीशन है उनको हमने स्पेयर कर देना है. यहाँ से जिसमें नजर आ रहा है कि ये स्पेयर किया हुआ है. Approaches for the laser parameters we can apply as low regulation technique. In this technique, we mainly use for the dark and the light iris, and power use is 1.25 watts, and the duration is 4 to 4.5 seconds. For eyes with all other iris pigmentation, power we use is 1.5 watt, and the duration is 3.5 to 4 seconds. And but standard technique में जो parameters use किया जाते हैं वो power है 1.75 and the duration is 2 seconds. To minimize the risk of over-treatment and hypotony, which is the complication of this procedure, reduced number of shots per treatment is recommended. For example, 10 to 20 shots in 1 to 2 quadrant. If IOP remains elevated, after 6 weeks हम ट्रीटमेंट दोबारा से कर सकते हैं. मतलब ये नहीं कि एक ही टाइम में सारी ट्रीटमेंट करने से बेहतर है कि आप शॉट्स कम कर दें, 6 वीक्स के बाद दोबारा से देखें IOP पेशेंट का रेज जाए तो आप उसकी री-ट्रीटमेंट करें. इसमें पेशेंट हाइपोटनी में भी नहीं जाएगा और ओवर ट्रीटमेंट भी नहीं होगा पेशेंट. कॉम्प्लिकेशंस आर इंटीरियर इन्फ्लेमेशन, hypotony, hemorrhage, scleral thickening, perforation, cataract, lens subluxation, phthisis, sympathetic endophthalmitis. This shows the procedure of cyclophotocoagulation. This is the picture. And the other one is endodiode laser photocoagulation. जो पिछली थी उसमें हम लोग ने पेशेंट की कोई मतलब इंट्राओक्युलर सर्जरी नहीं थी, हमें बाहर से जो भी लेजर अप्लाई की.
बट इन केस ऑफ एंडोडायोड हम लोग एंडोस्कोपिकली मतलब इंट्राऑक्युलरली जाते हैं एंटीरियर चैम्बर में, वहाँ से हम सिलिंडर बॉडी को अप्रोच करते हैं और फिर लेजर अप्लाई करते हैं. बट इंडिकेशंस आर द सेम एज पर द cytophotocoagulation, but it is achieved endoscopically using endolaser cytophotocoagulation of the ciliary body as an intraocular procedure. Method is consent. Then ciliary process can be approached via limbal or a pars plana entry. The limbal approach avoids anterior vitrectomy and the associated risk. Then we do pupil dilatation. Set laser at 60 to 90 milliwatts power and the duration is continuous. The AC is filled with viscoelastic agent which is further used to expand the laser posterior surface to allow easier approach to the pars plica with the ECP probe. The probe images the outside of the eye before being inserted into the anterior chamber and the posterior surface. Apply laser to each process until shrinkage and widening occur. तब तक लेजर लगानी तब तक उसकी उस प्रोसेस की सिलियरी प्रोसेस की श्रिंकेज ना हो जाए. Only the raised processes are treated without affecting the valleys between the processes. If excessive energy is used, the process explodes with bubble formation leading to excessive inflammation and breakdown of the blood aqueous barrier. Treatment is 180 to 270 degree of the ciliary processes. This picture shows कि हमने प्रोब पास किया हुआ है लिम्बल अप्रोच से और उसके बाद हम लेजर पे इस पर अप्लाई कर रहे हैं. इसमें देख सकते हैं कि लिम्बल से हम लोग प्रोब लेकर जा रहे हैं. This is another picture. Complication of this procedure are the inflammations, either uveitis or saccharitis, and CMO, cystoid macular edema, cataract if patient is phakic, endophthalmitis, suprachoroidal hemorrhage, retinal detachment, hypotony, and phthisis. This is sclerostomy, कि हम लेजर अप्लाई कर रहे हैं through sclera to the ciliary process. It can be either by helium neon being focused on the sclera surface or anti-yak laser beam offset to deliver energy into the ciliary body. It can be done through non-contact or the contact. The non-contact में हम लोग क्या करते हैं कि लेंस रखते हैं, उस लेंस के थ्रू हम एनर्जी या कोई भी लेज़र पास करवाते हैं. डायरेक्टली हम लोग कोई प्रोब या कोई इस तरह की चीज़ अंदर लेके नहीं जा रहे. The second picture, laser energy directly internally via laser probe, but no conjunctival dissection is required in this procedure. Next, we will discuss procedures in the lens. The most commonly we encounter posterior subcapsular opacification after cataract surgery. So we do YAG capsulotomy, and then we will discuss this procedure in detail. The indication of the anti-YAG posterior capsulotomy is the visually significant PCOs. हमने सिर्फ तब YAG करनी है जब PCO आपकी विजन को obstruct कर रहा है. ये नहीं कि पेशेंट कि हमने देखा और हमें थोड़ा सा नजर आ रहा है, पेशेंट को विजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तब तक हमने इसको नहीं अप्लाई करना या इसको नहीं छेड़ना. And the contraindications for the anti-YAG posterior capsulotomy are of absolute and relative. In case of absolute contraindications, we do not use capsulotomy in case of corneal scars, irregularities or edema that interferes with target visualization or make optical breakdown unpredictable. And in case of inadequate stability of the eye, the patient की stability नहीं है eye की, तो फिर हम हमारी laser spots आगे भी छोड़ सकते हैं. और पीछे हमारे पास IOL भी पड़ा होता है, हमें जो लेंसेज में लगा रहे होते हैं, अगर छेड़ेगा तो वो लेंस को जाके भी अटैक कर सकता है. The relative contraindications are glass intraocular lens, known or suspected cystoid macular edema, active intraocular inflammation, and high risk of retinal detachment. Method is consent, and the cautions are check for the presence of coexisting ocular diseases such as uveitis, glaucoma, and macular edema, high risk retinal degeneration, which would make this a high risk procedure. Although it is not a high risk procedure, लेकिन अगर पेशेंट की हमने ये कंडीशंस रूल आउट ना की तो वो हाई रिस्क प्रोसीजर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड माइट नेसेसिटेट एडिशनल पोस्ट प्रोसीजरल थेरेपी और केयर. Install mid-reacting and set laser. Commonly 1 to 1.5 millijoules energy is required, and the energy have to be increased if the PCO is thicker. Beam should be angled. Spot number should be 10 to 30. Total number of spots should be 10 to 30, and the spot size is 10 microns. Position contact lens. The lens is used for YAG posterior capsulotomy, Spearman, or the central Abraham contact lens. And then the techniques are, there are two basic techniques: circular and the cruciate technique. हम इन दो टेक्निक्स को कंपेयर करेंगे. थर्ड भी होती है, उसमें सिर्फ ये होती है कि जो हमारे पास अगर हम सर्कुलर देते थे कि फुल रिंग ऑफ पेरिफेरल शॉट्स
इफेक्टिवली और पोस्टीरियर कैप्सुलोरेसिस, जैसे हम इंटीरियर कैप्सुलोरेसिस करते हैं या कैप्सुलॉटमी करते हैं, जैसे हम शॉर्ट्स लगाएंगे सर्कल में, जो कि इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि हमने पूरी पेरिफेरी में सर्कल में शॉर्ट्स लगाए हैं, तो बिल्कुल पोस्टीरियर कैप्सुलोरेसिस बन जाएगी। उसमें भी ये होगा कि जब हम पूरी शॉर्ट्स लगा देंगे, सर्कल कंप्लीट कर देंगे, जो सेंट्रल फ्लैप है हमारे पास पोस्टीरियर कैप्सुलॉटमी का, वो पीछे गिर जाएगा बिल्कुल इसमें, तो वो पेशेंट को बाद में फ्लोटर्स भी की कंप्लेन भी हो सकती है। ठीक है, सेकेंड वन इसकी इसी प्रोसीजर में अगर हम लोग सर्कुलरली मतलब 360 डिग्री अगर उसको लेजर्स नहीं लगाते हैं, हम इंफीरियरली सिर्फ अवॉइड करते हैं लेजर लगाने से, वो फ्लैप पीछे नहीं गिरेगा, वो अटैच रहेगा, तो फ्लोटर की कंप्लेन कम होगी। द सेकेंड इज क्रूशिएट, जिसमें हम लोग क्रॉस शेप लेजर्स लगाते हैं। पहले हम लोग 12 o'clock से 6 o'clock पोजीशन में जाते हैं, देन वो 3 o'clock से 9 o'clock पोजीशन में जाते हैं। बट इसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि साइड से वो अटैच रहते हैं, तो इसमें जो कैप्सुलर फ्लैप है उसका फॉल होने के चांस नहीं होते, तो फ्लोटर्स की कंप्लेन पेशेंट को नहीं होती। तो अब इसमें एक दो चीज़ होती है, एक तो ये कि इसमें हमने क्रॉस पैटर्न में लगाने हैं, इसमें हमने सर्कुलर पैटर्न में लगाने हैं। क्रूशिएट के हमारे पास फायदा ये कि वो अटैच रहते हैं, तो फ्लोटर्स की कंप्लेन नहीं होती। इसमें फ्लोटर्स होने के चांसेस होते हैं क्योंकि पेशेंट का जो फ्लैप है वो पोस्टीरियरली विट्रस में फॉल कर देता है। नंबर 3 इसमें जिसमें हमें नजर आ रहा है कि हम लोग क्रूशिएट में बिल्कुल विजुअल एक्सिस पे लगा रहे हैं शॉर्ट्स। अगर हमारी पावर एडजस्ट नहीं होती है, थोड़ी सी पावर हम ज़्यादा लगा देते हैं, तो जो हमारे पीछे RL पड़ा हुआ है उस पर फिटिंग हो सकती है। इसमें फिटिंग के चांसेस ज़्यादा हैं इसमें विजुअल एक्सिस में, बट इसमें क्योंकि हम सिर्फ पेरिफेरी में लगाते हैं, तो हमारा जो विजुअल एक्सिस है उसको विजुअल एक्सिस वाले एरिया पे आयरन में फिटिंग होने के चांस बहुत कम होता है, तो ये इसका फ़ायदा है। This is the parameters of the technique for cruciate pattern. We use minimum energy which is 1 millijoule if possible. Identify and cut cross tension lines. अभी हम पिक्चर में आगे पिक्चर के सारे एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर। Perform a cruciate opening beginning at 12 o'clock position in the periphery. Progress towards the 6 o'clock position and cut cross 3 and the 9 o'clock position. Clean up any residual tags and avoid free floating fragments. अब ये पिक्चर है जो हमारे पास शो कर रही है, डायग्रामेटिक पिक्चर है। इसमें हमारे पास ये सारा आइरिस जो हमारे पास है, ये पीछे पोस्टीरियर कैप्सुलर पैसिफिकेशन शो हो रही है। अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने टेंशन लाइन होती है, क्योंकि जब पैसिफिकेशन होगी किसी भी पोस्टीरियर कैप्सूल की तो उसके ऊपर टेंशन तो आएगी। ठीक है, अगर हम उस टेंशन लाइन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उस पर लेजर स्पॉट लगाएं, तो जब वो सेंटर से स्पॉट लगे, कुछ जिस खींचते हैं उन्हें स्पॉट लगाए काट दे तो पीछे अचानक चले जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह वो कैप्सूल वहाँ से ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो हमारे पास एक ओपनिंग बन जाएगी। इसलिए हमने टेंशन लाइन्स पे लगा रहे थे। तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी टेंशन लाइन ब्लॉक पोजीशन पे, वहाँ पे स्पॉट लेजर स्पॉट लगाना है। देन हमारे पास इसमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट हो रही है यहाँ पे। देन द सेकंड शॉट इज एम, हमने जहाँ पे जितनी ओपनिंग हमारे पास क्रिएट हुई है उसके इंफीरियर मार्जिन पे हमने सेकंड शॉट लगानी है। सेकंड शॉट इज एम इनसाइड द इंफीरियर एज ऑफ द initial opening, and then the second spot is applied at the 6 o'clock position of the capsulotomy border. The other line जो हमारे पास 6 o'clock पे लगाती है हमने, the first shot is made across inferior tension line to alert capsulotomy to widen. मतलब आपको ने 6 o'clock पे लगाई, 6 o'clock पे लगाने के बाद जो हमारी inferior tension line है उस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक इतनी ज़्यादा वाइडेड एक वर्टिकल अभी ओपनिंग क्रिएट होती है। फिर हमने इसको विड्थ पे भी तो करना है कि हमारे पास, ताकि पेशेंट को अगर पीपल हमारे पास जब कंस्ट्रिक्ट होता है अभी तो डायलेट किया होगा, जब पेशेंट नॉर्मली कोई मतलब रात के टाइम या दिन के टाइम अपना वर्क कर रहा है उस टाइम वो विजुअल एक्सेस को उसके ऊपर यूज ना करेगा, हम सिर्फ इतना लगा के छोड़ देंगे तो वो तो उसे ग्लेयर आता रहेगा। ड्राइविंग करते हुए ड्राइविंग करते हुए थोड़ा सा डायलेट होता है रात के टाइम में पे, तो फिर हमने इसको नेक्स्ट ग्लेयर के अलावा विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स भी आते हैं। फिर हमने जो फिफ्थ वन है वो हमने लगा ली 3 o'clock पोजीशन पे, और ताकि हमारे पास 3 मिलीमीटर वाइड ओपनिंग क्रिएट हो जाए। अदर वन इज अप्लाइड एट द 9 o'clock पोजीशन, एक हम ओपनिंग के लिए 7:30 पोजीशन पे भी लगाते हैं। देन दिस इज द कंप्लीट कैप्सुलोटमी कंप्लीट हो गई और पीपल विल बी क्लियर ऑफ कैप्सूल आफ्टर द डायलेशन वियर्स ऑफ, मतलब इतना जो हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। और अगर हमारे डायलेशन खत्म होती है, जब खत्म होगा ड्रग का, तो हमारे पास इतनी ओपनिंग होगी कि उसको इफेक्ट नहीं करेगी बाद में। नॉर्मली जो कैप्सुलोटमी साइज है वो शुड बी इनफ टू अकाउंट फॉर द प्यूपल साइज इंक्लूडिंग डार्कनिंग
अगर रात में जो थोड़ा सा डायलेट होते हैं उसका जो प्यूपल साइज आता है हमारे पास नॉर्मली पेशेंट्स का वो 4 mm होता है। इतनी आपकी कैप्सुलोटमी साइज होना चाहिए कि उसको वो किसी भी ड्यूरेशन में दिन में या रात में इरिटेट ना करे। थोड़ा बहुत अच्छा लेक्चर चल रहा है आपका। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी केस में रिएक्ट करने के कि आप प्री ऑफ पोजीशन ऑफ द प्यूपल देखें विदाउट एनी डायलेशन। समटाइम लोगों के एक्सेंट्रिक प्यूपल होते हैं जी ये ना पेशेंट आपके पास डायलेटिव कंडीशन में आ गए या ओपीडी में किसी ने पिक्चर नहीं बना दी तो इवन डायग्नोस्टिक में भी रिएक्ट का पेशेंट है तो अपने असिस्टेंट्स को कहेंगे कि तो आपको दिखा दें। आपने सेंटर भी हैक कर दिए बाद में पता चला कि जी वो तो उसका प्यूपल का था वो तो प्यूपिलरी वीक की तरफ था और उस रिएक्ट का फायदा ही कोई ये भी बहुत कंटिन्यू। The size should never be bigger than the optic size of the IOL, which is typically 6 mm. और सॉरी इसमें फिर यही होगा कि जो मतलब ओपीडी में रिएक्ट के लिए रेफर जी, करें सर। वो मतलब उसकी डायग्राम बना देंगे ठीक है सर। और सर ताकि पहले अगर वो लेजर में डायलेट हो गया भी जाए जी सर। तो जो करने वाला है उसे पता हो कि ये पोजीशन तो फर्स्ट वाली की प्यूपल साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकंड के आईओएल का साइज भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने उससे भी ज़्यादा बड़ा नहीं करना होता है क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा बड़ा कर दोगे तो विट्रियस के प्रोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उससे कम रखने ताकि हम प्रिवेंट कर सकें विट्रियस फ्रॉम प्रोलैप्सिंग अराउंड द ऑप्टिक एंड इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर और इवन इनटू द इंटीरियर चैम्बर उसको प्रिवेंट करते हैं। Complication of this procedure is increased IOP, cystoid macular edema, retinal damage including tear or detachment, lens damage like pitting or dislocation of the lens, inflammation, floaters, corneal edema, failure, and the need for the treatment can result after this treatment. This picture shows pre-treatment and the post-treatment picture of a patient. ट्रीटमेंट से पहले ये सारी हमें स्पेसिफिकेशन नजर आ रही है, आफ्टर ट्रीटमेंट ये हमारे पास पूरा एक ओपनिंग क्रिएट होगी। The last topic is the laser safety. Laser classification होता है laser safety in class 1. Laser radiation is those radiations are included which is inaccessible or is harmless with the eye safe radiations, very low power, for example CD flares except class 1C. In class 1C, laser produced designed for contact application to the skin or internal body tissues. The emitted laser radiations may be at class 3 or the 4 levels, but ocular exposure is prevented by the method of administration or instrumental design. In class 1M, class 1 laser की होती है which is safe when viewed directly. मतलब आप डायरेक्टली व्यू कर रहे हो तो सेफ होती है, बट वही क्लास 1 वाली लेजर जब आप किसी ऑप्टिकल एड से देख रहे हो जिसमें मैग्नीफाइड इमेज होता है तो उसमें ये हार्मफुल होगी। Class 2 is safe for brief momentary exposure, applies only to visible light source which is 400 to 700 nanometer. As exposure is estimated to be limited by blink reflex to less than 0.25 second, low power, for example laser pointers. इस वाली लेजर का क्लासिफिकेशन में आएंगे क्लास 2M, क्लास 2 लेजर which is safe when viewed directly but may be harmful when using optical aid that will magnify the beam. Class 3R laser radiation is potentially harmful to the eyes, but safety regulations are reduced because actual harm is relatively unlikely, for example due to natural aversion to the bright light for visible radiations or low likelihood of exposure into the full beam. Class 3B is the laser radiation is harmful to the eyes and partially to skin. When diffuse reflection is usually safe, medium power for some ophthalmic devices. Class 4 include direct radiation and even diffuse reflections are harmful to eyes and to skin, possible fire or explosion hazards. And high power radiations are in class 4 में almost all therapeutic lasers are class 4 lasers. Other classification mentioned in the Kington is class 1 in which output is less than 0.004. It includes blue and green light and it is safe for the eye. Which is less than 0.024 millivolt is red and it is also safe for the eye. And the second class is less than 1 millivolt and the spectrum is the visible wavelength and eye is safe because brightness causes blink and eversion. 3A is 1 to 5 millivolts visible wavelengths and eye safe because brightness causes blink and eversions. 3B is 5 to 5000 significant eye damage, for example retinal photocoagulation. 4.1 is greater than output is greater than 500 millivolts and serious irreversible damage, for example medical industries and military vehicles. Laser safety regulations. Patient safety secured by correct positioning of the patient. Danger to the surgeon is avoided by safety filter system. जब हम लोग मोस्टली PRP कर रहे होते हैं या दूसरी लेजर्स कर रहे होते हैं तो सेफ्टी फिल्टर ग्लासेस होती हैं, गोगल्स होती हैं, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए या फिर फिल्टर्स भी होते हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेफ्टी फॉर द डॉक्टर असिस्टेंट्स जो सारे असिस्ट करवाने उनके लिए भी
प्रोटेक्टिव गॉगल्स होनी चाहिए आर worn by the attending relatives, assisting staff or the trainers to prevent any damage to the eyes. These are the references. Thank you. बहुत ही अच्छी कंटिन्यूएशन की आपकी प्रोसेस। मायोपिया का बताया आपने मायोपिक पेशेंट का क्या कोई एनीवन सीनियर्स प्रिकॉशंस लेनी पड़ी। एक तो पहले तो यही है कि समटाइम तो आपको वैसे ही पता चल जाता है हिस्ट्री में या उसका रिकॉर्ड होता है तो उसका लेंस किसका होगा थोड़ा सब में इतना उपयोग होता है कि आप फंडस भी व्यू नहीं कर सकते। अगर ये वाला कोई क्लू मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना आप एक्सेल लेंथ कर सकते हैं, कई चीज़ें कर सकते हैं उससे कन्फर्म करने फंडस व्यू हो जाए तब। लेकिन मैं प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ कि लेज़र अगर कन्फर्म हो जाए कि ये मायोपिक है और ज़रूरत भी बहुत है या लेज़र कैप्सूल में, तो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? कोई दो प्रिकॉशन। मिनिमम एनर्जी नंबर 1 और नंबर 2 के अपर्चर साइज स्मॉल रखें, इतना के बस उसकी ज़रूरत पूरी हो। लार्ज अपर्चर न बनाए, चाहे विजुअल फील्ड इफेक्ट भी आ जाए, नो प्रॉब्लम। एक बंदे के विजन ही नहीं है, विजन देना इम्पोर्टेंट है, ना कि इतना लेज़र हो जाए, इतनी एनर्जी हो जाए कि जैसे डिटैचमेंट सीएनसी होगी। ये दो पॉइंट्स, बाकी सब ये भी आपने शेयर कर दिया उसमें पूरा लेक्चर शेयर सर असल में मैंने इसमें चेंजेस की थी विषय लेकर से वो आपने कर सर न्यू वाली शेयर कर सर थैंक यू। तो गुड प्रेजेंटेशन। लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी को अगर हम कंपेयर करें विद मेडिकल ट्रीटमेंट तो कौन सी बेहतर है? लेज़र लेस इन्वेसिव मेडिकल है, अगर उसके रिफ्रैक्टरी उससे कंट्रोल नहीं रिजल्ट हो रहा। दोनों के कैसे हैं? कंपेरेबल है? कंपेरेबल है। कंपेरेबल है। तो लेकिन रॉस में आपको रोज़ ड्रॉप डालना पड़ता है, इसमें खास तौर पे जिसमें कंप्लाइंस पुअर है उसमें आप ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। सो इनिशियल ट्रीटमेंट जो है वो आप लेज़र करते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, वो आपकी मर्जी है। दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर फैसिलिटी आपके पास है तो यू कैन गो फॉर लेज़र। लेकिन आमतौर पे अवॉइड करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा देर से आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो फिर लेज़र इतना इफेक्टिव नहीं होगा। सो स्टार्ट में जो है ना वो लेज़र इफेक्टिव होता है। सो लेकिन बहुत ज़्यादा आईओपी रिडक्शन नहीं होती है कंपेरेबल विद प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। जिस तरह उसमें 8-10 मिलीमीटर का फ़र्क पड़ता है, इसमें भी इतना। तो अगर फ़र्ज़ करो 25 है और 15 हो जाता है तो वो भी ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ करो प्रेशर 30 है तो 35 है तो वो लेज़र उसको इतना काम नहीं करेगा। सो फिर हमें शायद ट्रेबेकुलेक्टमी की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी जो साइक्लोफोटोकोएगुलेशन है डायोड से, उसमें मेन प्रॉब्लम है अनप्रेडिक्टेबल कि आईओपी कितना कम होता है वो कुछ कहना मुश्किल है। सो इसलिए पहले क्वाड्रेंट में करते हैं या 180 डिग्री पे करते हैं, फिर और ज़रूरत पड़े तो और कर लेते हैं, इस तरह करते हैं। आमतौर पे बहुत सारे लोग उसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं कंसिडर करते। हाँ, तो उसमें ये है जब व्यूअल पोटेंशियल कम है और चलो जी हाइपोटनी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, तो फिर आप कंसिडर करते हैं साइक्लोफोटोकोएगुलेशन। लेकिन अभी क्योंकि थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो रही है, प्रिसाइज हो रहे हैं, तो अब क्योंकि थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो रहा है तो कई लोग इसको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसमें भी कंसिडर कर रहे हैं। जिस तरह मेडिकल और लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी है उस तरफ आ रहा है, लेकिन अभी इतना प्रिसाइज नहीं हुआ। बाकी वो जो आपने पिछली दफ़ा जिक्र किया था कैटरेक्ट के लिए लेज़र हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो एक
कैप्सुलोटमी भी कर सकते हैं और जो न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स है उसके पीसेस भी कर सकते हैं। और वो थोड़ा प्रिसाइज होता है कि आप पहले से मार्किंग कर लेते हैं कंप्यूटर पे कि भाई ये पुस्टियर कैप्सूल है तो इतनी स्पेस हमने छोड़ के न्यूक्लियस के पीसेस करने हैं, तो पुस्टियर कैप्सूल रप्चर होने के चांसेस कम होते हैं। उसका नाम भी है तो पता नहीं, लेंजेक्स जो इस तरह का। पाकिस्तान में 2-3 मशीनें हैं जो लेज़र के साथ कैटरेक्ट करते हैं। तो वो ये मतलब लेटेस्ट डेवलपमेंट कह लें कि फिरकों के बाद जो हमारे पास ऑप्शन नहीं आई है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा ये यूज़ हो रही है। कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है कैटरेक्ट ऑपरेशन की, लेकिन कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाता है। कैप्सुलोटमी कंट्रोल होगी, पुस्टियर कैप्सूल रप्चर के चांसेस कम हो जाएंगे। ये कुछ एडवांटेज होते हैं। और ये पुस्टियर कैप्सुलोटमी में देखें ना, अगर पेशेंट डायबिटिक है, आपने लेज़र लगाना है तो शायद आपको थोड़ा सा बड़ा वक्त बनाना पड़े पर्चर। अगर पेशेंट नॉन डायबिटिक है तो शायद 2-3 मिलीमीटर का प्यूपल है तो उतना ओपनिंग भी काफ़ी हो जाएगी। लेकिन अगर लेज़र करना है, पेरिफेरी में लेज़र करना है, फिर ओपनिंग ज़्यादा बड़ी रखनी चाहिए आपको, उसमें कैप्सुलोटमी बड़ी करनी पड़ती है। और जो आयरिडेक्टमी है वो पिछली दफ़ा आपने डिस्कस की थी। सो वो जापानीज आयरिडेक्टमी क्या होती है? इंफीरियरली क्यों करते हैं? सिलिकॉन ऑयल। अच्छा, कोई SF6 डालने के बाद भी कोई आयरिडेक्टमी करते हैं, आयरिडोटमी। ये आमतौर पे जैसे एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी होती है तो उसमें भी जब आप एंडोथीलियल ग्राफ्ट प्लेस कर देते हैं एंटीरियर चैम्बर में तो फिर कुछ एयर डालते हैं या SF6 डालते हैं ताकि वो जो ग्राफ्ट है इट इज़ पुश्ड अगेंस्ट द कॉर्नियल एंडोथीलियम। तो वो मतलब होता है कि अगर प्यूपिल ग्लाकोमा वाला बात ना आ जाए तो आयरिडेक्टमी कर लेते हैं या आयरिडोटमी कर लेते हैं 6 o'clock पोजिशन पे, वो भी एक इंडिकेशन है। तो आयरिडोटमी हमारे पेशेंट्स में क्या प्रॉब्लम पेश आती है? हमारी जो आयरिस है वो पिगमेंटेड होती है, वो जो है ना लेज़र लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। सो आपको ज़्यादा कोशिश करनी है। जो ब्लू आयरिस है उसमें आराम से हो जाती है, ये ब्राउन आयरिस में प्रॉब्लमेटिक है। सो ये जो डिफरेंस है वो। और फेम्टो लेज़र का क्या रोल है जो हम फेम्टो लेज़र करते हैं? फ्लैप क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जो फ्लैप क्रिएट करने के लिए पहले हम फेम्टोलेस जहाँ हो रहा है वो किसी के जाके देखें। अच्छा, वो पहले वो वैक्यूम क्रिएट करते हैं, कॉर्निया को फ्लैट करते हैं, फिर जो लेज़र अप्लाई करते हैं तो वो पूरा फ्लैप बनता है। उसको मैकेनिकली फ्लैप को आप लिफ्ट करते हैं, लिफ्ट करके फिर उस बेड पे आप एक्साइमर अप्लाई करते हैं, फिर फ्लैप को रीपोजिशन कर देते हैं। तो ये जो फ्लैप है आप फेम्टो से भी क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? केराटोम। सो जो ऑटोमेटेड केराटोम है वो जब गिरता है तो वो एक स्पेसिफिक थिकनेस का फ्लैप प्लेस कर देता है। सो ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी में आजकल क्योंकि इन है स्माइल और ये जो नए कुछ स्माइल से क्या बनता है? हाँ, अच्छा, इसमें मैनुअल में और जो फेम्टोसेकंड में इसमें जो फ्लैप होता है वो एक जगह पे अटैच होता है, बाकी सारे, सो दैट इज कॉल्ड हिंज। ठीक है, तो जो फेम्टो में होती है वो हिंज कहाँ होती है? फेम्टो में सुपीरियर। ठीक है, क्योंकि मैनुअली जब आप करते हो तो इंटरपल्पेब्रल फिशर के इस तरह जाते हैं तो उसमें फिर हिंज नेजली होती है।
ठीक है, क्योंकि टेम्पोरल साइड से आप उसको कट स्टार्ट करते हैं एंड गो टुवर्ड्स द नेक, तो नेजल पे वो उसको तो हिंज जो है वो इस तरह, और जो फ्रंटो है उसमें आप सुपीरियर ये थोड़ा